Hello friends, this is Ram Soni. Today we will talk about one of the most important thing for the life. How to realize your dreams. Well, this is like quite vague concept. काफी एक ऐसा concept है जिसको हर कोई बात करता है, बट obvious सी बात है. हर कोई कहता है कि ड्रीम्स पाना है तो कुछ you have to push your limits. Lot of things I have been talking about that. Today we will talk about human behavior. आज हम ह्यूमन बिहेवियर के एंगल से समझेंगे बेसिकली हाउ टू वी कैन गेट आवर ड्रीम्स. वेल एवरीबॉडी हैव बीन लुकिंग फॉर समथिंग इन देयर लाइफ. हर कोई अपनी ज़िंदगी में सोचता है कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए. एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर समथिंग इन देयर लाइफ. समबॉडी इज प्लानिंग दैट. हो सकता है आप लोग कुछ लोग मे बी शायद 12th क्लास में हो या 10th क्लास में हो. यू आर जस्ट स्टडिंग द बोर्ड क्लास एंड यू आर प्लानिंग दैट ओके आई विल गेट 90% देन आई विल गेट हैप्पी. ओके समथिंग लाइक दैट. Somebody is planning that okay they will get qualify a competitive exam and you will be happy with it. Okay, you became a doctor, you became an engineer, something like that. You became IITians, you became AMS. But sometimes in life we want to get the competitive exam, that's fine. Sometimes we want to give beyond than that, that's also fine. But what is the biggest problem with many of us? After a time, after some certain period of time, what we do? We just give up in our dreams. This is the real truth. Sometimes in life we feel like okay this is not in my reach. ये हमारे reach में तो कतई नहीं है. I cannot get in the life. इस life में तो बिल्कुल नहीं पा सकता. Even they are thinking like any exam, like UPSC exam or any tough exams you're looking for. They are thinking like okay ये तो मेरे बस की बात नहीं. I will not get it. Many people think like that. That's truth. Sometimes you apply for it and you lose it also. Badly, miserably. But let me tell you one thing. When you want something in life, at any point of time, you should remember this most important thing. What I'm going to tell you right now. Everything comes into your way. हर कोई चीज़ आपके रास्ते में जो आती है, वो हल्का सा nature driven होती है. It is nature driven. Nature is checking your ability whether you got the skills, whether you got the guts, whether you got that kind of desire, what is needed for that particular post, what is needed for that particular job, whether you have that kind of desires or skills or not, whether you got any plans or not. If you want to become IAS officer, whether you have got that skills, whether you got that skill set, whether you got that kind of desire that you want to serve the people, whether you got that kind of skill and desire, whether you can work for 24 hours in a day, do you have that kind of skill? This is what nature is checking on you. And when nature is awarding something, nature is checking that who got the best. And those who got the best, they get the award. So what is the theme of that thing? Whenever you want something in life, just raise your desire for that particular thing. Focus in that particular thing. Give it in the first priority. Give your dreams the first priority. That's the most important thing in life. Lose everything as second priority. People are saying that thing, okay, you are not giving the priority to your family. I'm not saying that thing, leave your family behind. But I'm saying this one thing. Your family must understand what you need to do. If your family is not cooperating in your dreams, then they are not a family. That's true. This is how thing works. If somebody is not understanding what you need to get in your life, what is essential for your life, what is must for your life, how they are family. So I am saying this one thing. I'm not saying they boycott your family. Just convince your family that this is very important for me. This is what I want to get it anyhow. And your family will stand with you. The true family stand with you. That's true. That's why I'm saying that thing. When you want to chase any dreams, involve the people around you. They will put some positivity into your brain. That simple concept, what happens, that एक छोटी सी चीज़ मैं पूछता हूँ. मान लीजिए एक दूध है, एक दूध का बकेट है और उसमें 3-4 ड्रॉप इंक के आप डाल दो तो सारा का सारा दूध जो है खराब हो जाता है. दिस इज व्हाट हैपेंस विद आवर रियल लाइफ. सपोज हमारा दिमाग है जितना भी है और वो दूध है. इट्स लाइक मिल्क. जिसके पास असीमित अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसके पास ड्रीम्स हैं, जिसके पास कमिटमेंट है, जिसके पास सब कुछ है जो एक उस पोस्ट के लिए चाहिए. You have all kind of skill what is needed for that particular post. But what happens that something happens in your family, something happens in your life and वो सारा का सारा सब गड़बड़ हो जाता है.
और दुनिया में आप कहते फिरते हो आई हैवंट गॉट दिस थिंग बिकॉज ऑफ दिस दैट, ये वो फलाना ठिकाना। लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट द गुड थिंग यू कैन डू। यदि उस बकेट में 2-4 इंक डल गई तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि उसमें 3-4 बकेट दूध और डाल दीजिए, मतलब पॉजिटिविटी उसके अंदर और भी डाल दीजिए, जस्ट पुट मोर पॉजिटिविटी इनसाइड इट। तो कमाल की बात यह है कि वो जो नेगेटिविटी है उसका जो असर है वो फीका पड़ जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस वन थिंग, इन्वॉल्व एवरीबॉडी अराउंड यू। इफ दे आर इन योर वे, just have them. If they are not in your way, leave them behind. Because let me tell you one thing, your parents never want that you don't get anything in life. They will stand with you. Your family don't want that you should not get anything in life. They are happy whatever you're getting. They will be happy with it. They want you to touch the zenith. So I am saying this one thing, in your life at any point of time, never get down. Push your limits higher. But the most important thing is that don't get park. Many of us get park and they start to blame about your family. They start to blame about the situation. Never blame. Learn not to blame. Excuses are very easy to find out. यदि आप कुछ जिंदगी में नहीं हो तो बहुत ही आसान है एक्सक्यूज फाइंड आउट करना कि you haven't got this because of this, that, ये वो. Lot of things are there. Because it's very easy to say. यदि आप जिंदगी में कुछ नहीं हो तो ये कहना बहुत आसान है कि आई एम नॉट दिस बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये इंसान मेरा दिमाग इतना खाता था, ये इंसान मेरा इतना डिस्टर्ब करता था, आप घर के सामने रेडियो बहुत तेज बजता था, समथिंग लाइक दैट। यू विल गेट लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, सम आर नॉनसेंस एक्सक्यूजेस, बट दैट्स ट्रू। इफ देयर इज प्रॉब्लम, व्हाई यू डोंट गो टू दैट पर्सन एंड कन्विंस दैट पर्सन? अदरवाइज लीव दैट पर्सन बिहाइंड। इन योर ड्रीम्स, इफ यू वांट टू गेट समथिंग इन लाइफ, whether you want a billionaire or something, whether you want to get qualified in government exams, whether you want to get high salary jobs or not, whether you want to build your business or something like that, involve the people around you, take their confidence, build the positivity around you, because positivity is very important. Because people say that okay, that's not important, that's one time goal, kabhi kabhar sun lo, that's important. Let me tell you one thing, people say positivity is not important. जस्ट थिंक अबाउट योर लाइफ। आपकी जिंदगी में कितने बार इमोशनल टच आते हैं, आपकी जिंदगी में कितने बार बिहेवियर चेंज होते हैं आपके। अचानक से आपके दिमाग में, आपका दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है और अचानक से आपके दिमाग में एक ऐसा इंस्टेंस आता है जो कभी पास में हुआ होता है और आपकी एक दर्दनाक सच्चाई होती है, वो खुल के बाहर आती है एंड यू फील डिप्रेस्ड। दिस हैपेंस, दैट्स ट्रू, दिस इज हाउ थिंग वर्क्स इन द रियल लाइफ, दिस थिंग हैपेंस। सो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करिए एक ट्यूब है, एक टायर होता है, उसके अंदर ट्यूब होती है। हालांकि आजकल बहुत सारे ट्यूबलेस टायर होते हैं, बट दैट्स डिफरेंट थिंग। मान लीजिए सपोज करिए एक ट्यूब है। वो ट्यूब जो है जब गाड़ी चलती है लगातार, और उस ट्यूब में मान लीजिए सपोज करिए एक छोटा सा हल्का सा होल है और उस होल से लगातार हवा बाहर निकलने लगती है, लिटिल बिट, बट इट जस्ट गेट्स आउट। और कमाल की बात यह है कि उसको फिल करने के लिए आपके पास कुछ है भी नहीं, फिलर भी नहीं है, बट यू विल डू। आपके पास बेस्ट तरीका यह है कि हर एक 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद में साइड में गाड़ी खड़ी करिए, उस टायर में हवा डलवाइए, देन आफ्टर मूव ऑन। दिस हाउ थिंग हैपेंस इन द लाइफ। आपकी लाइफ में यदि पॉजिटिविटी, क्या होता है, टाइम के साथ पॉजिटिविटी चली जाती है। आपकी लाइफ में हर वक्त आपको लगता है कि ओके, आई एम दिस बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, दिस पर्सन हर्ट मी अ लॉट। Yeah, people might have hurt you a lot. That's true. इस दुनिया में कोई भी चीज़ किसी को बिना हर्ट किए nothing happens. Everybody hurts somebody. ये एक सिंपल सी बात दुनिया का फिलॉसफी है। There is something happens in the life. हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा दर्द होगा जो आपके माइंड में होगा कि this person hurt you a lot. That's true. But I am saying this one thing. So वहाँ से निगेटिविटी लेने की बजाय जस्ट ब्रिंग द पॉजिटिविटी, बिकॉज उसके बारे में जब आप सोचते हैं नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। सो आई एम सेइंग दिस वन थिंग, पुट द पॉजिटिविटी इनटू योर ब्रेन अगेन एंड देन आफ्टर मूव ऑन। सो आई एम सेइंग दिस वन थिंग, दिस अ वेरी कोर कॉन्सेप्ट। आई नो दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट दैट्स ट्रू। आई थिंक गेटिंग माई कॉन्सेप्ट कि आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं उसके लिए अपने डिजायर को बढ़ाएं, गिव अप ना करें, पार्क ना करें, जस्ट वर्क ऑन इट। slowly and slowly you will get it, because कुदरत भी देखती है
जब कुदरत को कोई चीज़ देनी होती ना तो देखती है दो चीज़ें, किस बंदे के अंदर सबसे ज़्यादा डिज़ायर है, मतलब किसको सबसे ज़्यादा नीड है, और दूसरा कौन सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। क्योंकि जब आपके पास नीड होती है ना तो प्रिपरेशन अपने आप होती है। यू हैव टू फाइंड आउट द वे व्हाई यू नीड दैट जॉब, और जब आपके अंदर ये होता है तो डेफिनेटली गेट इट। Second important thing is that many of my friends are saying that thing whether I am eligible for this job or not. और बेसिकली ये होता है कि many times you want to be businessman, many times you want to be IAS officer, many times you want to be a public servant. तो कई लोगों के माइंड में एक जहन में एक क्वेश्चन होता है whether I am eligible for this or not. Let me give you the concept. Everybody have got different skills. हर किसी काम करने का तरीका अलग होता है। मे बी किसी का कॉन्सेप्ट होगा कि आई विल बिल्ड ए प्लानिंग बेटर मॉडल, जिससे कारण हमारी इकोनॉमी बेटर हो सके, एक IAS ऑफिसर बन के आप कर सकते हैं। मे बी किसी के माइंड में होगा ओके मैं जो पॉलिसी है इम्प्लीमेंटेशन उसका सबसे अच्छा करूंगा, बिकॉज आपको पता है हमारे देश से पॉलिसी बहुत अच्छी बनती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट वेरी गुड, तो आप उसमें काम कर सकते हैं। मे बी किसी के माइंड में होगा कि हमारे यहाँ जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ क्रिएट नहीं हुई हैं, तो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन को आप कन्विंस कर सकते हैं, यदि आप ब्यूरोक्रेट हैं तो उनको कन्विंस कर सकते हैं कि यहाँ पे आप फैसिलिटी क्रिएट करो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और जब आप ब्यूरोक्रेट होते हैं तो मे बी आपके माइंड में है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यू कैन से बिग वर्ड्स, कहते हैं जब आप उस पोस्ट में होते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है, आप लोग कन्विंस कर सकते हैं लेट्स वर्क टू क्रिएट द इकोनॉमी। तो आई एम सेइंग दिस वन थिंग, हर किसी का एक स्किल होता है, हर किसी काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आप एक काम करने का तरीका अलग है, मेरे काम करने का तरीका अलग है। यू गॉट द डिफरेंट स्किल्स, हैव कॉन्फिडेंस ऑन इट, हैव फेथ ऑन इट, और आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। जस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ इन मेनी ऑफ अस। बहुत सारे हमारे लोग ये गलती करते हैं कि फेथ जब रखना होता है ना तो तीसरे पे रखते हैं, जिस पे नहीं रखना चाहिए, और अपने आप पे फेथ नहीं रखते। फेथ, विश्वास अपने आप पे रखना सीखें, दूसरों पे कम, क्योंकि अपने आप को आप जानते हैं, सामने वाले को नहीं। सो हैव फेथ इन योरसेल्फ, कल्टिवेट फेथ इन योरसेल्फ। ये जो इंसान है ना जो आपके सामने है, जो मिरर के सामने आप खड़े होते हो ना, जिस इंसान को आप देखते हो, यू नो दैट पर्सन बेटर देन एनीवन एल्स। सो हैव फेथ इन दैट पर्सन। जितना अधिक से अधिक कर सको दूसरे इंसान पे जिस पे आप फेथ कर रहे हो सकता है कभी वो आपको चीट कर जाए, हो सकता है कभी वो आपको ना समझे, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, लेकिन जो ये इंसान है जो मिरर के सामने आप खड़े होने पे मिलता है, वो इंसान कंप्लीटली ट्रस्टवर्दी है। लर्न टू हैव फेथ इन दैट पर्सन, whatever he will do, it will be fine. So I am saying this one thing, if you want to realize your dreams, the most important thing you have to do is that have faith in yourself, strive for better, make more desire, and the most important thing, get prepared for it. फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड यू कैन शेयर इट among your close friends. So that's all for now. Thanks so much. Bye bye. Take care. Thank you so much.